Hello everyone. So Farhan here, guys. Let's start paper 2, 5070, variance 22, May, June 2020. The duration of this paper is 1 hour 30 minutes. Let's see what we have in the paper. Choose from the following chlorides to answer the question. AlCl3. Okay. Ammonium chloride, NH4Cl. Calcium chloride, CaCl2. Hydrogen chloride, HCl. Iron 3 chloride is FeCl3. Silver chloride is AgCl. Sodium chloride is NaCl. Contain cation with a 2+ charge. 2+ charge obviously calcium के ऊपर होगा, which is why calcium chloride is the right answer. Reacts with warm aqueous sodium hydroxide to form a gas which turns damp red litmus paper blue. This test confirms the presence of ammonia. So मैंने आपको क्या बताया? When any alkali, I repeat, when any alkali react with any ammonium salt, then always ammonia gas is formed, which means here we need to write ammonium chloride because ammonium chloride is an ammonium salt. Insoluble in water. Obviously, silver chloride is insoluble in water. Has molecule which has only 18 protons. 18 protons. I believe HCl is going to be the right answer because HCl में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन होगा. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे. टोटल प्रोटॉन्स इसके 18 हो जाएंगे और यही वो आपसे पूछ भी रहे हैं. तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर याद थे तो मैंने बहुत क्विकली 18 प्रोटॉन्स को वर्कआउट दिमाग में किया और मैंने ये आंसर दे दिया. अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है देन यू नीड टू वर्क आउट फॉर एवरी मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एंड देन यू नीड टू डिसाइड आफ्टर सो मच टाइम कि जी 18 प्रोटॉन्स होंगे किसमें. ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस रफली याद हो, सो दैट इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ज्यादा टाइम ना दें. ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर है. Is a colored solid at room temperature and pressure. Colored solid क्या रहा है? तो colored solid तो transition element का होता है. तो देखते हैं कि लिस्ट में हमारे पास कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, वही हमें कलर्ड सॉल्यूशन देगा. तो राइट आंसर इज आयरन 3 क्लोराइड. ओके, iron hydrogen reacts with oxygen shown in the equation. A sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted. This sample releases minus 286 kilojoule per mole of energy, 2 kilojoule of heat energy. Calculate the heat energy released when 25 gram of hydrogen is completely combusted. Okay, so first of all, we know the mass of hydrogen. So by using this mass, we can find the volume, we can find the moles of hydrogen gas. So in the first place, मैं सबसे पहले moles of hydrogen gas find out करूंगा. ये हो जाएगा 25.0 divided by 2. It's going to be 12.5 moles. So yeah, he is saying that when you have 1 mole of hydrogen, it releases this much energy. So if you have this much moles of hydrogen, how much energy is released? So it's just a molar ratio comparison.
So 1 mole of hydrogen releases 286 kilojoules energy. If we have 12.5 moles, how much energy is released? So into 286, 3575. So answer is 3575 kilojoules. तो हम यहाँ लिखेंगे 3575. And since examiner is saying heat energy release, इसका मतलब I need to place minus sign here. Okay, minus sign दिखाना जरूरी है क्योंकि एनर्जी रिलीज क्या रहा है, इसका मतलब एनर्जी एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. Use ideas about the bond breaking and bond forming. Explain why this reaction is exothermic. तो हम कहेंगे bond breaking बल्कि नहीं, इस तरह से कहेंगे energy is absorbed in bond breaking and energy is released in bond formation. Since reaction is exothermic, hence more energy is released than absorbed. All right. Okay. The reaction shown also represents the overall process that occurs within a hydrogen oxygen fuel cell. Describe one advantage of using a hydrogen oxygen fuel cell to a power motor vehicle rather than burning gasoline. जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करते हो तो उसमें स्टीम इज द बाय प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट अ पोल्यूटेंट. लेकिन जब आप मोटर व्हीकल यूज करते हो बर्निंग गैसोलीन, सो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. So it has environmental consequences, right? So आप यहाँ लिखेंगे in hydrogen oxygen fuel cell steam is the product which is not pollutant. Okay. While burning gasoline gives carbon dioxide, which causes global warming. Complete the equations for the two electrode reactions that happen in a hydrogen oxygen fuel cell. हाइड्रोजन के लिए हमने आपको बताया था 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड आइंस में. नो 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 नो, हाइड्रोक्साइड आइंस तो उस वक्त बनते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वाटर में. ओके, सो वी हैव डन these equations all right in the register. तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ये equations, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है.
नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एंड दिस क्वेश्चन हैज 5 डिफरेंट एस्टर्स और हमें इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है। यहाँ मॉलिक्यूलर मास जो है वो मिसिंग है, व्हिच मींस वी नीड टू फाइंड आउट। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन नहीं है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट हैज अ ट्रेंड। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हुआ, ठीक है, कम हुआ, ज्यादा, कम और फिर ज्यादा, कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है। स्टेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल पेंटानोएट। ओके, लेट्स फाइंड आउट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो 12 इंटू 6 कर देते हैं, तो कार्बन आ जाएगा 3 + 2 5 7 9 10 11 12 प्लस 12 कर देते हैं तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 कर दो तो ये आ जाएगा 116, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यानी मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कर दिया, 12 टाइम्स 6 लिया, प्लस 1 टाइम 12 लिया, प्लस 16 टाइम्स 16 टाइम्स 2 लिया, तो ये मेरे पास 116 आ गया। ओके, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोएट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोएट ऑब्वियसली 9, इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 कार्बन एटम्स के लिए ये है तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम के लिए इससे भी ज्यादा होना चाहिए। सो ये होगा बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, तो ये -95 है, तो ऑब्वियसली -95 से ज्यादा होना चाहिए। तो यू कैन सजेस्ट और प्रिडिक्ट एनी वैल्यू, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कह रहे हैं। ओ माय गुडनेस, मैं मेल्टिंग पॉइंट क्यों देख रहा हूँ, माय बैड। ये इंक्रीज हुआ तो 102 से ज्यादा होना चाहिए, तो 102 से तो ज्यादा कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं यार। लेट्स सपोज 110 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके, बल्कि 105 से ऑनवर्ड्स कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोएट। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, व्हिच मींस देयर इज नो क्लियर ट्रेंड। फर्स्ट melting point increases, then it decreases, hence it has no specific trend. गाइस ये याद रखिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। At 35 degrees Celsius, methyl methanoate is a gas. Explain how this data in the table shows this. Methyl methanoate जो है वो गैस है, तो भाई बॉयल हो रहा है 32 पे, सही है, और मेल्ट हो रहा है -100 पे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 32 है। इसका मतलब 32 और ऑनवर्ड्स, वो 32 पे बॉयल हो गया गाइस, तो अगर टेम्परेचर 35 है तो इसका मतलब गैस में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि टेम्परेचर 35 इज द गैस, जबकि बॉयल किस पर होता है, 32 पे होता है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 32 से ज्यादा है। सो आप लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज बिगर देन 32 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, hence
इट इज अ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लोग कह रहे हैं मिथाइल पेंटानोएट इज यूज्ड टू फ्लेवर फूड, सजेस्ट वन यूज फॉर एस्टर, या परफ्यूम्स में यूज होता है, ठीक है, और इन सॉल्वेंट्स भी यूज होता है। तो आप दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, मैंने दोनों लिख दिए आपको, ठीक है। मिथाइल पेंटानोएट, ओ ओ ओ, वेट वेट वेट, फिर दोबारा से करते हैं। ये मिथाइल है, और ये मिथाइल किसका सेगमेंट है? अल्कोहल का, है ना। और प्रोपानोएट किसका सेगमेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको भी हेल्प होगी इस तरह से, स्ट्रक्चर में कौन सा अल्कोहल कौन सा एसिड का पार्ट है। तो प्रोपानोएट जो है वो एसिड है, ये आ गया प्रोपानोएट, और जो अल्कोहल का पार्ट है वो मिथाइल है, और ये आ गया मिथाइल। सही है, तो ये मिथाइल हो गया, ये प्रोपानोएट हो गया, यानी स्ट्रक्चर लिखते हुए पहले एसिड का पार्ट, बाद में अल्कोहल, और नाम देते हुए पहले अल्कोहल बाद में एसिड। यही क्लास में भी समझाया मैंने आपको। फिर वो कह रहे हैं आपसे, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक दैट शोज कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। Calculate the maximum mass of methyl propanoate that can be made from 11 gram of propanic acid and excess methanol. तो यहां से दो बातें और पता चल गई। पहली बात तो ये हो गई कि प्रोपेनिक एसिड आपका लिमिट, ओहो, प्रोपेनिक एसिड आपका बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मिथेनॉल एक्सेस में है, विच इज वाई मैं इसको यूज नहीं कर लूंगा। और तीसरी सबसे अहम बात कि आपको बकायदा प्रोपेनिक एसिड का मास गिवन है, और वो आपसे कह रहे हैं कि यूज दिस मास टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ एस्टर and you need to give the answer to three significant figures. Sorry. So first of all, find out the MR of propanoic acid. So propanoic acid का MR बेटा हमारे पास आ जाएगा 74। कैसे? 12 times 3 plus 1 times 6, तो 1 times 6 plus 16 times 2, so it's going to be 74, ठीक है। ऑलराइट, सिमिलरली मुझे यहां से MR ऑफ मिथाइल प्रोपानोएट डिटरमाइन करना है। तो कितने कार्बन है मिथाइल प्रोपानोएट में? 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 16 टाइम्स 2 कर दें क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, तो 1 टाइम्स 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 88। सही है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोपेनिक एसिड। सो मैं प्रोपेनिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। फॉर दैट मुझे मास चाहिए विच इज 11.0, मुझे MR चाहिए विच इज 74, तो 11 divided by 74 is going to be 0.1486, 0.1486 moles। अच्छा, मुझे जगह रनिंग आउट ऑफ स्पेस, सो हम इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। सही है, हमें थोड़ी सी जगह मिल गई। नाउ मैं जानता हूं कि एसिड और एस्टर इन दोनों में 1:1 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये देखो, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। सही है, तो अगर आपने प्रोपेनिक एसिड 0.1486 मोल कैलकुलेट किया है, तो एस्टर कितना हो जाएगा भाई? तो एस्टर भी सेम ही हो जाएगा, 0.1486 मोल्स, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट द मास, तो मास ऑफ एस्टर कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं MR से,
एस्टर का एमआर हमने कितना कैलकुलेट किया था 88, तो इंटू 88 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 13.081 ग्राम। और मुझसे वो कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो। सो भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूंगा तो ये हो जाएगा 3.1 ग्राम। ठीक है। Temperature of the reaction mixture is increased. State and explain in terms of particles what happens to the rate of the forward reaction. भाई temperature increase, तो in terms of particle explain or state rate of forward reaction क्या होगा। तो पहले state करो, तो rate of reaction increases, ये state कर दिया मैंने, rate of reaction increases, ये state कर दिया मैंने। वो कह रहे हैं explain भी करो। explain क्या होता है? Because as temperature increases, kinetic energy increases, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल increases. When movement of the particle increases, collision frequency increases. And therefore rate of reaction increases. ठीक है? Okay. The temperature of the reaction mixture is decreased. State and explain what happens to the position of equilibrium. Okay. Temperature reaction mixture का increase. State करना, explain करना है, happen to position of equilibrium. भाई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी यील्ड जो है वो प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टेट करता हूँ। ओह ओ ओ ओ माय गुडनेस, माय बैड, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नॉट डिक्रीजिंग। ओके, सो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑब्वियसली यील्ड जो है प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। तो पहले मैं स्टेट करता हूं कि होगा क्या, तो मैं बता रहा हूं इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने स्टेट कर दिया। क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन if temperature increases, causes stress in the equilibrium. ठीक है, to minimize this effect, equilibrium shifts towards left hand side. Guys, you have to be really careful. मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा लेकिन मैंने इंटरप्रिटेशन गलत की। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, बहुत केयरफुली रीड करेंगे। ठीक है, हर चीज को देख लीजिए बहुत अच्छे से कि जी क्या कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है और किस तरह से वो क्वेश्चन को हैंडल कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, part of the reactivity series is shown. Magnesium is most reactive, iron is less reactive. Predict the names of the products formed when chromium reacts with dilute hydrochloric acid. So भाई क्रोमियम है ना, सिंबल है Cr, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हो तो ऑब्वियसली क्रोमियम सल्फेट बनेगा। तो ये हो जाएगा Cr2SO4 टेकन 3 है तो यहाँ पर 3 लगाओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ये है इक्वेशन।
क्या? हाँ सही है, ठीक है। तो आपके पास, माय गुडनेस, व्हाट आई एम डूइंग, what I'm doing, guys, what I'm doing, that's a sad thing today. Examiner is saying hydrochloric acid. Why I was using sulfuric acid? Why? मतलब okay, anyhow, HCl से रिएक्शन करवाइए, क्रोमियम 3 क्लोराइड बनाइए और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एंड ऑब्वियसली क्रोमियम 3 क्लोराइड है। इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पर 6 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ और यहाँ पर 3 लगाओ। दैट्स योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक क्रोमियम 3 क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो क्रोमियम 3 chloride and 3 is the oxidation state of chromium in this compound, and hydrogen gas. Powdered zinc is added to aqueous chromium 3 ions. Construct an ionic equation with the state symbol for this reaction. Wait, मुझे वो कह रहे हैं कि मैं जिंक पाउडर ऐड कर रहा हूं aqueous chromium 3 ions में। Construct ionic equation with the state symbols for this reaction. ठीक है, सो मैं जिंक को ऐड कर रहा हूं chromium 3 ions में and it is converting into chromium metal. ओके, क्यों? क्यों भाई क्यों? इसलिए क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्रोमियम से ज्यादा है। इसका मतलब जिंक जो है वो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेस करके कॉपर मेटल बना रहा है और खुद कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयंस में। अब आप नोट करो, यहां पर चार्ज है 3+, ये न्यूट्रल है, यहां पर चार्ज है 2+, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ये जो चार्जेस हैं ये बैलेंस्ड नहीं है। तो जब चार्जेस बैलेंस नहीं होते गाइस, इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर 3 रखूंगा और मैं यहाँ पर भी 3 रखूंगा। ऐसा क्यों है भाई? देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, मेक श्योर के बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स 3+ करूंगा तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा 6+। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी चार्ज कितना होना चाहिए 6+, तो मैं यहाँ पर 3 करूंगा, ये 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 6+। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ 3 लगाया इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगाऊंगा। तो मुझे चार्ज बैलेंस करना था इसलिए यहाँ भी 3 लगाया मैंने और यहाँ भी 3 लगाया। चार्ज यहाँ पर क्योंकि 6+ है टोटल, 3 टाइम्स 2 6+, यहाँ पर भी 6+ हो जाए इसलिए 2 टाइम्स 3 6+ किया मैंने, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगाया। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए मैंने इक्वेशन को इस तरह से हैंडल किया है। ओके, अब स्टेट सिंबल्स की बात कर रहे थे वो हमसे। ये मेटल है तो सॉलिड, ये आयन है तो एक्वस, ये मेटल है तो सॉलिड और ये आयन है तो एक्वस। तो इसमें इक्वेशन को कंप्लीट करना, दूसरा उसको बैलेंस करना और तीसरा उसका स्टेट सिंबल्स, व्हिच इज व्हाई एग्जामिनर ने आपको 2 मार्क्स दिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो मैंने आपको कहा था कि एल्यूमिनियम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक इम्परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो आप बताएंगे दिस इज बिकॉज aluminum has a thick oxide layer थिक ऑक्साइड लेयर, और इसको क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कहते हैं। ठीक है, थिक ऑक्साइड लेयर which is impermeable which is impermeable, hence
cannot interact with water, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इन अ टेस्ट ट्यूब, डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन इन द टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, मैंने ये रिएक्शन आपको करवाया है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्लास में क्या करवाया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय H+ आयंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और साथ में आयोडीन बनाएगा, और आयोडीन का जो है वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए इसका कलर जो है वो आपको ब्राउन नजर आएगा, ब्राउन सॉल्यूशन नजर आएगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब द कलर चेंज। कलर चेंज क्या होगा भाई? इन दोनों का तो कलर कलरलेस होता है, और कन्वर्ट किस में होगा? ब्राउन। तो ये हो जाएगा कलरलेस टू ब्राउन। इक्वेशन भी बता दी है और कलर ऑब्जर्वेशन भी बता दी है, मेक श्योर आपको दोनों याद हो। Chromium is extracted by the reaction of aluminum with chromium 3 oxide. Write the equation for this reaction. So again, important चीज, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है क्रोमियम 3 ऑक्साइड से, और वो आपसे इक्वेशन मांग रहे हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन मांग रहे हैं, स्टेट सिंबल नहीं मांग रहे हैं। तो आप एल्यूमिनियम लिखेंगे, क्रोमियम 3 ऑक्साइड लिखेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है क्रोमियम मेटल मिलेगा आपको, और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर कितने क्रोमियम है? 2, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं? 2, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। दैट्स माय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज सजेस्ट अ कंपाउंड दैट कैन बी रिड्यूस्ड क्रोमियम 3 ऑक्साइड टू क्रोमियम मेटल। अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, कंपाउंड कह रहे हैं हमसे सजेस्ट करने के लिए जो रिड्यूस कर दे क्रोमियम 3 ऑक्साइड को क्रोमियम मेटल में। तो मैंने कहा था कि जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू। याद आया आपको? ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया आपको मेटल्स के चैप्टर में। तो रिएक्टिव मेटल्स लाइक क्रोमियम, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। जिंक का ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो सकता है, कार्बन से तो क्रोमियम का भी हो सकता है। सो यू गाइस नीड टू know such things. State one advantage of recycling metal. Saves energy. Saves energy. Saves energy and natural resources. Or saves natural resources. Okay. Let's start with question number 5. Oh my goodness. That is again a very challenging topic, but we have done this thing in the class, so hopefully हम handle कर लेंगे इसको भी। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि टेक्निकली देखा जाए तो एसिड है एंड ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच है वो 0 से 3 तक की रेंज में होती है। ठीक है, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और स्ट्रॉन्ग एल्कली की जो पीएच होती है वो 12 से 14 की रेंज में होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक रेंज ले सकते हैं। सेंसिबल ऑब्वियसली मैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 1 लूंगा और स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए 13 लूंगा, और ग्राफ से भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 20 सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH, इन दोनों में मोलर रेशो क्या है? 1:2 का, ये भी ध्यान में रखो। Next is sample of 25 cm cube of 0.05 mole per dm cube H2SO4 is placed in a beaker. So भाई H2SO4 आपने कहाँ रखा है? बीकर में। Okay, और NaOH is added slowly from the burette to the H2SO4 in the beaker. तो भाई NaOH आपने कहाँ रखा है? ब्यूरेट में। तो अगर NaOH ब्यूरेट में है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ NaOH होना चाहिए जो कि एग्जामिनर ने मुझे दिया है।
दैट्स ऑल राइट। यही हमने क्लास में कहा था कि जो चीज ब्यूरेट के अंदर होती है वो एक्स एक्सिस पे एग्जामिनर देता है, एंड ऑब्वियसली जो पीएच वैल्यूज होती हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर होती हैं, तो उसने पीएच जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर मेंशन की हुई है। ऑलराइट, अ पीएच प्रोब यानी पीएच मीटर is used to measure the pH of the solution in a beaker until a total 40 cm cube of NaOH is added. The graph shows how the pH of the solution in the beaker changes. Okay. ठीक है, pH पहले कम थी फिर ज्यादा थी। अच्छा, एक बात और यहाँ से, क्योंकि ये बीकर की बात कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा बीकर को हाईलाइट कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि इस बीकर में एसिड है और स्ट्रॉन्ग एच एसिड है, ये ऑब्वियसली ये फुली आयोनाइज होगा, तो जाहिर सी बात है मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी, और जब मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है तो लोअर पीएच वैल्यू होती है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो लोअर पीएच वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो आप नोट करें इसका ग्राफ रफली 1 से स्टार्ट हो रहा है। सही है। अब इशू ये है कि ये जो NaOH है मेरे पास, ये ब्यूरेट में है। सही है। व्हेन यू ऐड इट इन बीकर तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी H प्लस आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। अब तुम नोट करो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हुई थी तो लोअर पीएच थी, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी? इंक्रीजेस। सही है। तो देखो ग्राफ जो है वो बेसिकली किस पीएच के ऊपर जाकर टर्मिनेट हो रहा है? समवेयर अराउंड 13, रफली 13 पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है। सही है। ओके। Explain in terms of the ions present why the pH of the solution in the beaker changes from 1 to 13। तो मैंने कहा था 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, और 13 पे एंड हो रहा है, ये देखो। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, इसी को लिख के देना है बेटा हमने यहाँ पर। एंड आई होप यू गेट द पॉइंट कि भाई किस तरह से हम इस चीज को जज करेंगे। हम थोड़ा सा समझदारी से लिखते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड लाइंस एंड वी नीड टू राइट अ लॉट। तो हम लिखते हैं हम लिखते हैं H2SO4 is a strong acid, ionizes fully in beaker, more concentration of hydrogen ions, hence it has a lower pH value, pH value of 1 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। ब्यूरेट contain NaOH, has hydroxide ions reacting with hydrogen ions. This decreases the concentration of hydrogen ions and increases the concentration of hydroxide ions. Hence, it has higher pH value of 13. I hope it makes sense to you. मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, ठीक है।
यानी मैंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ मेंशन किया विद इन टाइम फ्रेम एंड विद इन लाइन। सही है। यूज द ग्राफ टू स्टेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH दैट जस्ट न्यूट्रलाइज ऑल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सो याद करो, मैंने कहा था कि इस लाइन को तुम वर्टिकल लाइन कहते हो, और ये वर्टिकल लाइन हमेशा वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको कह देता हूं कि ये वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट। और वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मैंने कहा था कि जिस लाइन के ऊपर ये है उसके ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट विच इज 20 cm3। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 cm3। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लाइन जो है उससे आप वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट डिटरमिन करते हैं। हमेशा हमने क्लास में भी यही करवाया आपको। Use your answer to be to calculate the concentration in mole per dm cube NaOH. Okay, so guys, I know the volume and concentration of H2SO4, 0.05 and 25. Okay, 0.05 and 25. ये भी क्लास में करवाया हमने। So हम कहेंगे 1000 centimeter cube of H2SO4 contain 0.0500 moles. लेट मी चेक, इससे पहले कि कोई गलती हो मुझसे। 0.0500 1000 cm3 में, एंड देन 25। सॉरी बैक एंड फोर्थ जाने की वजह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्टेक अफोर्ड की जा सकती है। इस वक्त हम फ्लो में चल रहे हैं बहुत। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोल्स ऑफ H2SO4। 0.05 into 25 divided by 1000 is going to be 1.25 into 10 to the power minus 3 moles। ठीक है। According to the equation H2SO4 और NaOH में 1:2 का रेशियो है। ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। अगर आपने ये 1.25 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power minus 3 मोल्स। ठीक है। अब ये जो 10 to the power minus 3 मोल्स निकालें, ये 20 cm3 में निकालें आपने, राइट। सो मेरा लास्ट स्टेप है कि 20 cm3 of NaOH contain 2.5 into 10 to the power minus 3 moles। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 cm3 से कंपेयर करूंगा। हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है ना, तो हम 1000 cm3 से कंपेयर करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH मेरे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा into 1000 divided by 20 is going to be 0.125। okay, 0.125 मोल पर dm3। तो गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.125 मोल पर dm3। That's the end of this question number 5। Let's move on to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्ट्रक्चर ऑफ 2 अल्कोहल्स आर शोन। क्योंकि ये 2 कार्बन एटम का अल्कोहल है इसलिए इथेनॉल। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एटम का अल्कोहल है इसलिए ये ब्यूटेनॉल होगा। और वो आपसे नाम ही पूछा इनफैक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्कोहल बी, तो आप ब्यूटेनॉल बोलोगे। बहुत से बच्चे ब्यूटेनॉल लिखेंगे, आई मीन ब्यूटेनॉल, लेकिन मैंने आपको कहा है, मैंने करवाया है क्लास में, इसको नाम दिया जाएगा ब्यूटेन 1-ओल का। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्यों कह रहा हूँ ब्यूटेन 1-ओल? तो मैंने आपको समझाया कि कार्बन एटम को नंबर असाइन करो राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड से भी करो 1 2 3 4। तुम नोट करो, जब तुमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की तो इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 1, और जब लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है 4। तो नेमिंग के लिए वो साइड अडॉप्ट करते हैं जहां से पोजीशन मिनिमल होती है। 4 कार्बन एटम को ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेन लिखा। फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसलिए 1-ओल। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास।
Draw the structure of one other alcohol which is an isomer of B. Show all of the atoms and all of the bonds. यार ब्यूटेन 1-ol है, तो इसके मैंने आपको आइसोमर्स बना के बहुत सारे दिए हैं. मैंने आपको ये भी दिया है. ओहो, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2-ol. ठीक है, 3 and 4. ये ब्यूटेन 2-ol हो गया. उसके बाद आपके पास है एक और, ये भी देख लो, ये भी करवाया मैंने आपको क्लास में. इसको कहते हैं 2-methyl propane 1-ol. सही है. और बेटा मैंने ये भी करवाया आपको. हाँ, मैंने ये भी करवाया है 2-methyl propane 2-ol. ओके, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. तो इन तीनों में से कोई एक लिखना हो. मैंने तीनों लिख दिए आपको. तो हो सकता है किसी बच्चे ने ये लिखा हो, किसी बच्चे ने ये लिखा हो, किसी बच्चे ने ये लिखा हो, सबको मार्क्स मिल जाएंगे. बट इन तीनों में से कोई एक लिखना है. ठीक है, एंड वी हैव डन ऑल. ठीक है, यू कैन इवन चेक द रजिस्टर. सो मेक श्योर कि आपको कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो. आपका कंटेंट वेल हैंडलिंग हो उसकी, बहुत बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ हो आपने. Ethanoic acid is produced by the oxidation of ethanol. State the reagent for this reaction. तो अगर ethanol से ऑक्सीडेशन होगी ethanoic acid की, तो उसके लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा. एंड ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा पोटेशियम मैग्नेट 7. You can even use acidified potassium dichromate 6 as well. Okay. Ethanol is simple molecular compound. Explain why liquid ethanol does not conduct electricity. भाई वो कह रहे हैं लिक्विड इथेनॉल और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास फ्री मोबाइल आयंस भी नहीं होंगे, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे. सो आप सिंपल लिखें, बिकॉज इट इज simple molecular, hence it has no free mobile electron. Okay. Ethanol can be dehydrated to form ethene. That's what we have done in the class. Describe using a dot and cross diagram the bonding in a molecule of ethene. I did that in chemical bonding के chapter. Only include the outer shell electrons. याद होना चाहिए आपको इथीन का स्ट्रक्चर. ये है ना, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं. याद होना चाहिए. स्ट्रक्चर याद होगा तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कन्वीनियंट हो जाएगी आपके लिए. ठीक है, तो मैंने क्लास में जो करवाया मैं वही बना के दे देता हूँ. ये कार्बन है और ये भी कार्बन है. छोटा बना दिया मैंने, चलें थोड़ा बड़ा बना देते हैं. अभी भी छोटा है. अच्छा, ये साइज मेक सेंस. ठीक है, अब इस कार्बन, ये भी कार्बन एटम है आपका और ये भी कार्बन एटम है. तो भाई इस कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ये फर्स्ट आ गया, उप्स, ये फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया. ये बेटा सेकंड हाइड्रोजन हो गया. ये बच्चे थर्ड हाइड्रोजन हो गया. एंड गाइस ये फोर्थ हाइड्रोजन हो गया. तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन. सही है. कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4. 1 2 3 4. दूसरे वाले कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4. 1 2 3 4. और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से. 1 1 1 एंड 1. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. सही है. ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी मिलकर क्या बनाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब बिटवीन द कार्बन एटम कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड, बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। तो ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन्स ये वाला बॉन्ड बना रहे होंगे, नीचे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये वाला बॉन्ड बना रहे होंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। This question is about some of the oxides, the elements in period 3. State the electronic configuration of the negative ions in sodium oxide. Okay, sodium oxide कह रहा है, और वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट करो नेगेटिव आयन। तो भाई इस जगह पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6। इस आयन में O2 माइनस है, इसका मतलब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। तो हम लिखेंगे 2,8, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, magnesium oxide is insoluble base that can be used to prepare pure magnesium sulfate crystals. Describe the essential particles, practical details for the preparation of pure magnesium sulfate crystals from magnesium oxide. Okay, all right. तो दो चीजें हैं, पहली बात कि ये insoluble base है, और दूसरी बात मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, और तीसरी बात जो बहुत ही ज्यादा अहम होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसका मतलब मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है प्योर मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स की, तो ऑब्वियसली आई नीड टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फेट आयंस सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे। सो ये भी क्लास में करवाया हुआ है मैंने पूरा प्रोसीजर, तो मैं उसी को लिख देता हूं। हम लेंगे एट सल्फ्यूरिक एसिड इन एन एम्प्टी बीकर, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। 4 मार्क्स का पार्ट है, विच मीन्स वी नीड टू राइट each and every point. Add sulfuric acid in an empty beaker, then add insoluble excess magnesium oxide in a beaker containing H2SO4। जाहिर सी बात है आपने एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज किया है जस्ट टू कंफर्म कि सल्फ्यूरिक एसिड फुली यूटिलाइज हो जाए। जब सल्फ्यूरिक एसिड फुली यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है, लिहाजा मैग्नीशियम ऑक्साइड बीकर के बॉटल में सेटल हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन magnesium oxide is insoluble and will settle in the beaker। उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है ये soluble पार्ट है और ये इनसॉल्युबल पार्ट है, ये सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल पार्ट। तो फिल्ट्रेशन होगा, filtration can be carried out via filter funnel supported by filter paper। ठीक है, the residue is obviously has to be on the filter paper and the filtrate can be collected in the conical flask। Residue is present on the filter paper, is present nahi, residue is trapped on the
filter paper and filtrate can be collected in the flask or beaker. दिस टाइम हम बीकर ले लेते हैं क्योंकि हमने बीकर ही लिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, heat the solution या heat the filtrate till crystals will appear. ठीक है, सही है। Heat the filtrate till crystals appear. After solution becomes saturated, जब saturated हो जाएगा जब ही तो crystallization होगी। I hope it makes sense to you. ठीक है, 4 marks justified. Okay, but ये मैंने क्लास में कराया हुआ तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। An oxide of phosphorus contain 43.7% by mass of phosphorus. Show that the empirical formula of oxide is P2O5. यार भाई सबसे पहले तो एक काम करते हैं, percentage by mass of oxygen निकालते हैं। 100% था अगर हमारे पास और उसमें से 43.7% फॉस्फोरस है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 minus 43.7 is going to be 56.3%। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि भाई फॉस्फोरस हमारे पास है 43.7, इसको डिवाइड कर दो 31 से, ऑक्सीजन हमारे पास है 56.3, इसको डिवाइड कर दो 16 से। 56.3 divided by 16 is going to be 3.518 okay 3.518 और फिर उसके बाद 43.7 divided by 31 is going to be 1.4096 1.4096 now 1.4096 is the least value, तो आप डिवाइड कर दीजिए in order to get the simplest ratio, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3.518 divided by answer is going to be 2.49, इसका मतलब 2.50 हो जाएगा। राउंड ऑफ करूं मैं तो, बल्कि राउंड ऑफ भी नहीं करते, जो है वो लिख देते हैं 2.495 कह रहा है, सही है। मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 4.99 एंड ऑब्वियसली ये जो 4.99 है ये हो जाएगा 5। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, P2O5, हेंस प्रूव्ड कि जी ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। गुड, sample of this oxide has a mass of 2.56 gram. Wait, इस ऑक्साइड का जो मास है वो 2.58 ग्राम है। The sample contain this much moles of oxide. Calculate the relative molecular mass and hence the molecular formula of this oxide. Okay, crazy है थोड़ा सा, but ये कि manageable है। मोल्स किसके इक्वल होते हैं भाई, मास के ओवर mr, mr equals to mass into moles। मास कितना दिया हुआ है 2.56, मोल्स कितना दिया हुआ है 0.00901, 2.56 into 0.00901 is going to be, oh my goodness, what I am doing guys, why don't you tell me। मास दिया हुआ है मुझे 2.56, इसको मैंने डिवाइड करना है मोल्स से which is 0.00901, my goodness, 2.56 divided by 0.00901
0.001 भाई यही है ना 0.00901 या अल्लाह ओके 284.1 ओके माय गुडनेस 284.1 तो भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 284.1 अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मुझे पता था तो वो है P2O5 टेकन N इक्वल्स टू MR और MR मेरे पास है 284.1 मैं P2O5 का मास निकाल लेता हूँ 31 into 2 plus 16 into 5 is going to be 142 तो इसका मास आ जाएगा P2O5 का 142 N equals to 284.1 तो यहां से आप N की वैल्यू निकालिए 284.1 divided by answer is going to be 2 N की वैल्यू 2 आ गई सो भाई हम क्या करते हैं N की वैल्यू की जगह 2 रखते हैं तो फास्फोरस कितना हो जाएगा P4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 10 तो फॉर्मूला बनेगा P4O10 स्टेट द स्ट्रक्चर इन बॉन्डिंग इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है जॉइंट मोलेकुलर बॉन्डिंग होती है कोवलेंट तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा जॉइंट मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट बॉन्डिंग okay next question number 8 okay copper is the transition element state two properties that are typical of a compound of transition element यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डेंसिटी ज्यादा होती है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ठीक है एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं यार तो जो टिपिकल कह रहा है ना टिपिकल टू प्रॉपर्टीज उसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूं फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड ओके और दूसरा है यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ठीक है aqueous copper sulfate reacts with aqueous potassium iodide the ionic equation for this reaction is shown that is the most important equation you guys have no idea how important this equation in A levels right याद रखिएगा कि जब ये बनेगा तो इसका ब्राउन सॉल्यूशन होगा ओके क्योंकि आयोडीन एक्वस है और ये कॉपर 1 आयोडाइड है इसके हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं हमेशा आप लैब में करके देख लीजिए ये रिएक्शन आप कॉपर 2 सल्फेट लीजिए उसमें एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड ऐड कीजिए आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी मिलेंगे ब्राउन सॉल्यूशन भी मिलेगा टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन है ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शोज दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन अगेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है मतलब सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉपर यहाँ पर 2 अच्छा सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो -1 है जबकि यहाँ पर आयोडीन 0 है तो जब आयोडीन -1 से 0 जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आयोडीन इज बेसिकली लूजेस इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन iodide ions are oxidized into iodine. This can be achieved by losing electrons, and losing electron is oxidation. Okay. Anhydrous copper 2 sulfate decomposes when heated strongly. ठीक है. A sample of 6.40 gram of copper sulfate is heated until all the sample has thermally decomposed. तो सबसे पहली बात कॉपर सल्फेट का मास दिया हुआ है हमें
On the basis of that, he is asking calculate the volume of sulfur trioxide formed in DM cube measured at room temperature. And on the basis of that, he is asking the volume of sulfur trioxide in this. ठीक है, मसला नहीं है. सबसे पहला काम, find out the MR of CuSO4. तो भाई CuSO4 का MR, कॉपर का मास कितना होता है 64, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 times 4. So 16 times 4 plus 32 plus 64 is going to be 160. ठीक है. Now I can find the moles of copper sulfate. ये हो जाएगा 6.40 divided by 160. 6.40 divided by 160 is going to be 0.04 moles. Okay, 0.04 moles. और जो मोल्स कॉपर सल्फेट के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो अगर आपने 0.04 मोल्स कैलकुलेट किए थे कॉपर सल्फेट के, तो मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सेम हो जाएंगे 0.04 मोल्स. ठीक है. लास्ट पार्ट, 1 मोल of sulfur trioxide. वैसे तो 1 mole of any gas कहते हैं हम, बट हम यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज कर रहे हैं इसलिए SO3 लिख रहे हैं. Occupied 24 dm cube at RTP. और मैंने कितने मोल्स निकाले 0.04 मोल्स. तो उसमें बताइए वॉल्यूम कितना होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का. तो वॉल्यूम ऑफ SO3 24, गलती नहीं होनी चाहिए, 0.96. Okay, 0.96 dm cube. So मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.96 dm cube. Part D, iron reacts with aqueous copper to sulfate to make aqueous iron to sulfate and copper. That's what we have done in the displacement reaction in metals का chapter. Construct the ionic equation for this reaction. Let's make the molecular first. आयरन है मेरे पास, आयरन का सिंबल होता है Fe. आप किससे रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, CuSO4. आप जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 में. अब आप ये भी जानते हैं कि ये सल्फेट आयंस एक्सपेक्टेड हैं, कैंसिल हो जाएंगे. सो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी आयरन मेटल एज इट इज. सॉलिड लिखूंगा मैं. अच्छा, वो स्टेट सिंबल्स मांग ही नहीं रहे हमसे, तो हमें स्टेट सिंबल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है. फिर है आपके पास कॉपर आयंस, क्योंकि सल्फेट कैंसिल हो चुका है. It is converting into copper metal as it is रखेंगे, and it is converting into iron to ions क्योंकि सल्फेट कैंसिल हो गया है. I hope it makes sense to you. Suggest one observation that would be seen during this reaction. भाई मैंने 2 लिखवाई हैं. पेल ब्लू, ये जो सोल्यूशन है, ब्लू सोल्यूशन है, ये डिसअपियर हो जाएगा और पिंक ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर होगा. तो वो ऑब्जर्वेशन, 1 ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, मैं 2 लिख के दे रहा हूँ. आप दोनों लिख के दे दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे आपको. तो ब्लू सॉल्यूशन डिसअपियर, ठीक है. दूसरी है पिंक ब्राउन सॉलिड अपीयर. पिंक ब्राउन सॉलिड जो है वो कॉपर का होता है. ऑलराइट. और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आप नोट करें, इसका भी तो ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा. आयरन टू आयंस ग्रीन होते हैं ना, तो ग्रीन सॉल्यूशन अपीयर. सही है. नेक्स्ट, describe a chemical test that can be used to distinguish between aqueous solution of iron 2 sulfate and copper 2 sulfate. आयरन 2 सल्फेट और कॉपर 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट और कॉपर 2 सल्फेट. तो भाई मैं सिंपल सा यूज कर लेता हूं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सॉल्ट एनालिसिस है, कैटायन एनाइन की आइडेंटिफिकेशन. आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 आयंस ग्रीन कलर का होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा. ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट होता है ये. और अगर कॉपर 2 सल्फेट है और उसको आप एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स देगा.
ये भी बहुत ऑब्वियस रिएक्शन होता है। सही है जनाब। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। State one environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide in air. Sulfur dioxide, since is an acidic gas, तो अगर वो एयर में है तो it causes acid rain. Also, it is a colorless gas. ठीक है, तो causes acid rain. So it corrodes buildings and limestone work. इसके अलावा क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, when heated in air, iron pyrite, इसका फॉर्मूला है FeS2 reacts with oxygen. Sulfur dioxide and iron 3 oxide are products of this reaction. Construct the equation for this reaction. Guys, बहुत सीधी सीधी बात एग्जामिनर ने की है। आपको उसने रिएक्टेंट्स दे दिए और वो कह रहा है कि भाई ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। सही है, आप इनको ध्यान में रखते हुए जरा इक्वेशन बना दीजिए। और वो आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ रहा है, ऑब्वियसली स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहा। लेकिन तो आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। आप उसको रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी, इतना आसान तो नहीं होगी। ये 2 से तो सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 4, 4 + 3 हो गए 7, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा। तो आयरन बैलेंस नहीं हो रहा, आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाऊंगा तो सल्फर 4 हो जाएगा। तो अगर सल्फर 4 हो रहा है, सो मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ। आयरन कितने हो गए 4, यहाँ 2 कर देता हूँ। सल्फर कितने हो गए यहाँ पर 4 × 2 8, 8 कर देता हूँ यहाँ। ऑक्सीजन कितने हो गए 8 × 2 16, 16 + 6, 16 + 6 कितने हो गए 22। तो यहाँ पर 11 कर दें। इसका मतलब बेटा ना ये 2 से सॉल्व हो रहा है, ना ये 3 से सॉल्व हो रहा है, ये 4 से सॉल्व होगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की बेस पे पहले आप 2 से करके देखेंगे, नहीं होगा, फिर 3 से करके देखेंगे, नहीं होगा, 4 से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ट्रायल एंड एरर दिमाग में किया और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, गिव वन यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग वुड पल्प। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव भी है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख दो, मैंने दोनों लिखवाए हैं आपको। यूज्ड इन द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। सही है, और फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो चाहे लिख दें। मैंने लेक्चर में दोनों लिखवाए हैं आपको, मैंने यहां पर भी दोनों ही लिख दिए हैं। इसके बाद लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। When the cylinder is opened, liquid quickly changes into gas. Use kinetic particle theory to describe the changes in movement and arrangement of the particle when liquid sulfur dioxide becomes gas. So भाई बहुत सारी चीजें इसमें। सबसे पहली बात, इसमें मूवमेंट पूछ रहा है आपसे, यानी रैंडम मोशन से वेरी रैंडम मोशन। ठीक है, लिक्विड से गैस जा रहा है ना, तो रैंडम से वेरी रैंडम। अरेंजमेंट इररेगुलर से हाईली इररेगुलर हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कह रहा है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर बहुत तमीज से लिखेंगे, बिकॉज वी हैव 5 लाइन्स हियर। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन लिक्विड्स particles are arranged in an irregular manner particles not very far away from each other
are not very far away. And so they move randomly. सही है. In gas, particles are arranged in highly irregular manner. Particles are very far away from each other. Far away from each other, and they move randomly. Very randomly, in fact. सही. उसके बाद है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. भाई पहली तो बात ये है कि स्ट्रक्चर होगा इसका सिंपल मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग होगी कोवलेंट और वीक वैन वाल फोर्सेस होंगी. उनको ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस एनर्जी व्हिच इज व्हाई इट हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट. तो ये बात लिख देते हैं यहाँ पर. यहाँ लिख देते हैं. Sulfur dioxide exhibits covalent bonding and has a simple molecular structure. It exhibits weak van der Waals forces weak van der Waals. Wall की spelling check कर लेना. It has weak van der Waals forces. So to overcome such force, we need less energy. We need less energy and less energy. Hence, it has low melting point. Describe the chemical test for sulfur dioxide. आप सब ध्यान में रखिएगा कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है. So it changes potassium dichromate 6 from orange to green. ये भी लिख सकते हो. और इसको ट्रीट करवा सकते हो तुम एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 से भी. दोनों को यूज कर सकते हो. मैं एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूंगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट कर लेगा. तो पोटेशियम मैग्नेट 7 का कलर क्या होता है? पर्पल. जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इट टर्न्स इनटू कलरलेस. तो कलर चेंजेस फ्रॉम purple to colorless. Okay. Oh, question number 10. That is going to be my last question, I believe. Okay. Fractional distillation and cracking are important processes in the conversion of petroleum into few useful hydrocarbons. Fractional distillation separates petroleum into fractions such as bitumen and naphtha. Which physical properties allows the petroleum to be separated into fractions? Boiling point,
The boiling point is used to separate fractions. Next, describe the separation of petroleum by fractional distillation. यार, तो सबसे पहले तो आप क्रूड ऑयल को हीट करोगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. ये जो 2 मार्क्स के लिए 4 लाइनें दी हुई है ना, इनको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है. ये प्रोसेस काफी लेंदी है और पूरी चीज लिखनी है फॉर 2 मार्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट द क्रूड ऑयल in a fractionating column. ठीक है. Fraction with low boiling point will collect from the top, if you remember the whole process, and fraction with high boiling point will collect, sorry about my writing, will collect from the bottom. सही है. Fractions को collect करने के लिए we have different exits. To collect the fractions, we have different exits. हर fraction का एक separate exits का area होगा जहां से वो remove हो जाएंगे. We have different exits. Okay. Give one use of bitumen fraction. भाई road surfacing के लिए use होता है. Used for road surfacing, यानी रोड बनाने के काम आता है. ब्लैक कलर का हम लिक्विड स्प्रे करते हैं रोड के ऊपर, वो बिटुमेन ही होता है. Naphtha fraction is used as a chemical feedstock. One of the hydrocarbons in naphtha fraction has a molecular formula C10H22. That basically your alkane. Use the general formula for an alkane to show that this is an alkane. But that's the simple thing. Alkane का general formula होता है CnH2n+2, right? अगर मैं इसमें 10 कार्बन एटम्स ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 × 10 + 2, तो ये हो जाएगा C10H2 × 10 20 + 2, तो ये हो जाएगा C10H22. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो बहुत ही आसान है यार. आई मीन काफी जेनरस 2 मार्क्स दिए उन्होंने. गॉड. नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट C10H22 is cracked to form products A, B, and C. 3 different products, guys. Product A gives is squeaky pop when ignited with a burning splinter. Identify product A, hydrogen gas. Because pop sound with burning splinter shows hydrogen gas. Okay. Next, product B has relative molecular mass 98 and decolorizes aqueous bromine. So यार अगर decolorise हो गया aqueous bromine में, इसका मतलब this product is basically an alkene, और वो alkene है जिसका MR 98 है. 98 MR. तो 98 MR कैसे आएगा? 10 कार्बन एटम्स हैं, 98 MR. तो ये तो ट्रायल एंड एरर की बेस पे होगा भाई सारा.
C4H10 भी नहीं होगा, चलो C5H10 करके देखते हैं। ये एक एल्कीन है, इसमें 12 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 10 है। जरा देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 12 टाइम्स 5 प्लस 10 इज 70। तो ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब हम C6H12 करेंगे। या C6H12 करो, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम 12। लेट्स सी इसका कितना आता है। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 6 प्लस 12 इज गोइंग टू बी, oh my god, 12 times 6 plus 12 is going to be 84। तो ये भी नहीं हुआ, तो C7H14 करके देखो। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 7 प्लस 1 टाइम 14। तो ट्रायल एंड एरर है गाइस, ये 12 टाइम्स 7 प्लस 1 टाइम्स 14 is 98। So that's my answer, C7H14। My goodness, C7H14। So आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे since it dechlorises aqueous bromine, this means it is alkene with an MR of 98, only C7H14 fits in it in this value। ठीक है, okay, my goodness। Product C can be polymerized to give a polymer shown, draw the structure of product C। okay, तो भाई जरा नोट कीजिएगा, ये जो हमने बनाया है इसी को देख लेते हैं। ये CH2 है, ये बॉन्ड है, ये CH है और ये CH3 है। तो अगर इससे इस पॉलीमर से मैं मोनोमर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, जब भी तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, राइट। तो बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना दें, ये क्या हो जाएगा CH3CH2, दैट इज योर प्रोपीन। तो इसको बना दो अब प्रोपीन। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी कह रहा है ना, ये बेसिकली मोनोमर मांग रहा है आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, ये याद रखना, क्योंकि पॉलीमर का तो स्ट्रक्चर दे दिया उसने, और पॉलीमर से मोनोमर का स्ट्रक्चर कैसे निकाला ये मैंने क्लास में भी सिखाई है बात आपको। एग्जैक्टली मैं उसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स द एंड ऑफ द पेपर।